journalism number of journalists are right. This program probably this is the first kind of program in the country. The awareness regarding this program has been organized by media persons. Earlier, all the programs were organized either by advocates, judges, police personnel, or university teachers. This is the first kind of program as far as I know where media persons are organizing Vartalap on these three important criminal laws. On this occasion, I welcome Abhinav Devri, Assistant Director PIB, Professor Anand Pawar, Registrar, Professor Naresh Vas, Professor Harjinder Walia, Harvard Department of Punjab University, Professor Saranjeet, Professor Manoj Sharma, Professor Dr. Vikram Singh, IAS, Head Officer PIB Jalandhar, and various journalists, teachers, and students. I feel proud as Rajiv Gandhi National University is organizing such a beautiful program on criminal law with video. I want to go to history of the three criminal laws. It begins from 1856, 1857, when Indian War of Independence was fought. And in that war, ईस्ट इंडिया कंपनी won the war. वार में 1857 भारतीयों ने लड़ाई लड़ी और ईस्ट इंडिया कंपनी से हम भारतीय लड़ाई हारे. That was the most important, one of the important failure of Indians, where we could not achieve our objectives, aims and objectives. And British Parliament take it very seriously. And British Parliament fought the Government of India Act 1958. ये दुनिया का देश was the most powerful law in the entire world. पूरे दुनिया के इतिहास में जितने भी लॉ पास हुए हैं, this is the most important powerful law in the country, in the history of the world. There were three consequences of this law. First, while the law made by Parliament, in British Parliament, it was a smaller country. That passed law for a big country, not only this India, which was included in India, Pakistan and Bangladesh, and some other parts of it. इतनी बड़ी पार्लियामेंट के लिए पास किया, and इस एक्ट के द्वारा they ended the rule of India. ईस्ट इंडिया रूल के शासक को जो भारतीय लड़ करके नहीं प्राप्त कर सके, उन्होंने एक कानून से समाप्त कर दिया. दुनिया में सत्ता का परिवर्तन कानून के द्वारा कहीं भी इतने बड़ी हुआ नहीं. और जिसको पूरा उसमें भारतीय लड़ करके नहीं प्राप्त कर पाए, उसको एक कानून के द्वारा समाप्त कर दिया. जो सॉवरेनिटी और संप्रभुता की बात करते हैं, भारत को दुनिया में संप्रभुता का इससे बड़ा प्रयोग करेंगे. Second, the post of the second important of the silent feature of this act was the post of Viceroy was list and the post of Governor General was created. Viceroy was a director of the East India Company, व्यापारिक कंपनी का डायरेक्टर था, मैनेजर था. अब now they are appointed governor general. They were governing the country. That was not a trading company. It was a governing company. भारत को गवर्न कर रहे थे. And third is इंडिया का जो अंतिम शासक था मुगल बादशाह, उसको that was he was exiled from India and he was executed in अंडमान. किसी भारतीय का शासन पूरी समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश पूरा शासन ब्रिटिश पार्लियामेंट में था. ये तीन उसकी विशेषताएं थी.
इसके बाद उनको लगा कि भारत को नियंत्रण करना है, भारत पर शासन करना है, अब ट्रेड नहीं करना है, अब क्या करना है, गवर्न। तो गवर्न करने के लिए 1857 की लड़ाई से हम हमेशा इतिहास से सीखते हैं। इसमें बहुत से लोग इंटर तक नहीं जानते उनको क्या करना होगा। बहुत विद्यार्थी साइंस के हैं बैकग्राउंड के, वो CPM की और IIT की तैयारी कर रहे थे, बाद में लाभ में आ गए। जियो में टर्निंग पॉइंट हम इतिहास के अनुसार दिखते हैं। उस लड़ाई में सबसे ज्यादा किसने भाग लिया था, सिपाहियों, मिडिल क्लास के। उन्होंने कहा कि अगर इस देश का शासन करना है तो उस लोअर मिडिल क्लास को कंट्रोल करना। क्या करना है, लोअर मिडिल क्लास को कंट्रोल करना है, क्योंकि दुनिया के जितने भी रिवॉल्यूशन हुए हैं हमेशा लोअर मिडिल क्लास ने किया। और उन्होंने इंडियन लीगल में इंडियन पेनल कोड स्थापित किया, फाइट टू गवर्न दी कंट्री। फर्स्ट इंडिया शब्द प्रयोग हुआ, भारत शब्द नहीं प्रयोग हुआ। इंडिया भारतवाद की में हजारों साल का नाम समाप्त करके देखिए वी वेर गिवन न्यू नेम इंडिया। और क्रिमिनल लॉ इंट्रोड्यूस किया उन्होंने। इसकी कई विशेषता है। पहली बार इसकी विशेषता है इट वाज सेकुलर। दुनिया का पहला लॉ था भारत के इतिहास जहां सेकुलर हुआ। अब जात के आधार पर मिलना नहीं था, हिंदू मुस्लिम ब्राह्मण वैश्य शूद्र के आधार पर सजा नहीं थी। अब चाहे राजा नौकर के यहाँ चोरी करे, चाहे नौकर राजा के यहाँ चोरी करे, दोनों पर सेम FIR होगी। एक ही थाने में मुकदमा चलेगा, एक ही जगह पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, एक ही समान वकील होंगे, जज होंगे। ये पहला दुनिया का सेकुलर लॉ था। जाति और धर्म का हिंदू मुस्लिम जातियों का सिस्टम हटा दिया गया। इट वॉज सोशलिस्ट। मार्क्स से सोशलिस्ट पहली बार सोशलिस्ट हुआ। जात का आधार गरीब भी चुका, और चाहे राजा चोरी करे चाहे गरीब चोरी करे, सबको एक ही कोर्ट में जाना है, एक ही थाने में जाना है, एक ही पुलिस स्टेशन में जाना है। इसकी विशेषताएं है। पहली बार जात धर्म रिलीजन ये सब हटा दिया। सारू सोशलिस्ट ये डेमोक्रेटिक था। पहली बार भारत में डेमोक्रेसी कहीं से शुरुआत। डेमोक्रेसी क्या था, पहले लॉ का किसके हाथ में जानकार थे, या तो हिंदुओं का लॉ पंडितों के हाथ में था, और मुस्लिमों का लॉ किसके हाथ में था, मौलवियों का। इन्होंने हटा दिया। अब जो LLB कर लेगा, लॉ का एजुकेशन प्राप्त कर लेगा, वो एडवोकेट होगा, वो लॉ का जानकार। ठीक है, वो पंडितों और शास्त्रों से उन्होंने हटा दिया। अब कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति का जात का जो व्यक्ति है, जो लॉ की इस्लाम क्रिमिनल लॉ को पढ़ लेगा, वो लॉ को इंटरप्रेट करेगा। वो मंदिरों और मस्जिदों से और पंडितों पुजारियों के यहाँ से ये सिस्टम लेके। नेक्स्ट, पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बॉम्बे खोला गया। नए सिस्टम, सारे क्रिमिनल सिस्टम का पढ़ाई मस्जिदों से और मंदिरों से बंद कर दी गई। अब कहाँ खुल गया, लॉ कॉलेज। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जहाँ सॉवरेंटी प्रयोग हुई, पहली सॉवरेंटी तो प्रयोग हुई, दूसरी बात संस्कृत और उसका जो सिस्टम इंटरप्रिटेशन था, उर्दू और फारसी और अरबी लैंग्वेज में था, वो अंग्रेजी वाली क्या इंट्रोड्यूस किया गया। नाउ अंग्रेजी वाली, इंग्लिश वाली इंट्रोड्यूस है मीडियम ऑफ क्रिमिनल। इसके पहले लॉ कहाँ था, या तो हिंदू का वेद पुराणों और धर्म शास्त्रों में था, और मुस्लिमों का किसमें था, कुरान और तमाम उनके जुलात उसमें थे। ये सब हटा करके कन्फाइंड सिस्टम में स्टार्ट किया इस क्रिमिनल। और उसमें कंट्रोल करने को किसका था, मिडिल क्लास को कंट्रोल करना था, क्योंकि मिडिल क्लास हिंदू और मुस्लिम दोनों थे, भारतीय थे, और उनको यहाँ प्रशासन था। और इसके बदौलत उन्होंने रिकॉर्ड द कंट्री अबाउट 90 years, रिकॉर्ड द कंट्री अबाउट 90 years। इक्वलिटी बिफोर लॉ, साउदी सेकुलर से बाद में आया, ये सब 1857 के लॉ में ही आ गया था। और वह सॉवरेंटी हमने अपने संविधान में जरूर लिख रखा है, हम वो सॉवरेन नहीं है, वो सॉवरेंटी थी। उसमें का जो सब इंस्पेक्टर था हमारी सरकार, ही वाज मोर पावरफुल देन दिस प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड सुप्रीम कोर्ट।
एक सब इंस्पेक्टर हजारों लोगों पर गोलियां चलवा सकता था और मार सकता था, ऐसे हाल भरा हुआ था। और आज प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट मिलकर भी एक व्यक्ति को भी फांसी की सजा, गोली की सजा नहीं दे सकते। अब वो सॉवरेंटी और सॉवरेंटी में फर्क है। इस गवर्नमेंट के द्वारा they ruled the country about 90 years. It was introduced in 1860 and it was implemented up to 1950। और 1950 का जब हमने संविधान अडॉप्ट किया तो हमने कहा कि हमारे ओल्ड क्रिमिनल जब तक रिपील नहीं किए जाते, आर्टिकल 372 और 392 के द्वारा कंटिन्यू है। 70 साल की जर्नी समाप्त हो चुकी थी, about more than 70 years। और सुप्रीम कोर्ट है गिवन वेरियस सेंटेंस, वेरियस गाइडलाइंस, वेरियस इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड डिक्लेरेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी केम टू सोसाइटी। उसमें सुधार की जरूरत थी, उसमें बहुत कमियां थी। और यहाँ पर एक उदाहरण ले लीजिए आप, चोरी और डकैती। अगर 4 व्यक्ति मिलकर के एक व्यक्ति को बैंक का गाड़ी जा रही है, एक व्यक्ति के 47 लेकर के और 2 करोड़ रुपया छीन लेता, चुरा लेता, कुछ व्यक्ति क्या चोरी कर लिया तो चोरी। और 5 व्यक्ति मिलकर के एक टाफी चुरा लेते हैं तो डकैती, तो उसकी विशेषता। एक व्यक्ति इस कमरे से 1 करोड़ रुपया चोरी कर लेता है, 4 व्यक्ति मिलकर के कर लेते हैं, तो क्या है वो चोरी। और 5 व्यक्ति अगर उसको 5 व्यक्ति मिलकर के काफी चुरा लेते हैं तो क्या है डकैती। उसके लिए FIR और ट्रायल और हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट बड़े बड़े लॉयर उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे, उसकी फीस देंगे क्योंकि उसने काफी चुराया है, मान चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट के जज उसमें जजमेंट देंगे, AIR में छपेगा और तमाम अखबार वाले टिप्पणियां लिखेंगे और क्लास पढ़ाया जाए। दूसरा, एक उसमें अंतर दिया कमजोर चोरी और डकैती छिनैती। धारा 378 में चोरी पर बात दी गई है और 383 में डकैती की। एक लाइन का अंतर है उसमें, कमजोर व्यक्ति चोरी करता है, मजबूत व्यक्ति छिनैती करता है। ठीक है, इतने लोग बैठे हुए हैं, किसी को मोबाइल चुराना है, धीरे चुरा लेगा, कोई जान ना पाए, चोरी का अपराध है। और 2 व्यक्ति चले जा रहे हैं, 5 व्यक्ति चले जा रहे हैं तो चोरी नहीं करेंगे, वो छिनैती करेंगे। चोरी और छिनैती पते का अंतर है, ठीक है ना। इस तरह के बहुत से उसमें कमियां थी। पुलिस के डिस्क्रेशन पर